Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 15 of my video series. Let's start with the question number 71. Given that the fifth term of an HP is 7, T5 is equal to 7 and T7 is equal to 5. These are the term of the HP sequence. So corresponding AP sequence term will be T5 is equal to 1 upon 7 and T7 is equal to 1 upon 5. So this implies A plus 4D is equal to 1 upon 7 and A plus 6D is equal to 1 upon 5. So subtract this equation with this, so we will get minus का 2D is equal to 1 upon 7 minus 1 upon 5, which is equal to minus का 2 upon 35. This implies D is equal to 1 upon 35. Now put the value of D in equation 1, so we will get A is equal to 1 upon 7 minus 4 upon 35, which will become 5 minus 4 upon 35. 35 is the LCM, 7 5 is 35, 5 minus 4. So A is equal to also 1 upon 35. Now we will find the 12th term of AP sequence first. So T12 is equal to A plus 11D. So it will become 1 upon 35 plus 11 upon 35, which is equal to 12 upon 35. But this is the term of AP sequence, but we want the 12th term of HP sequence. So 12th term of HP sequence will become 35 upon 12, reciprocal of AP term. So option D is correct. Now come to the question number 72. So we can write this equation as 1 square plus 2 square plus dot dot plus n square and minus T1 plus T2 plus dot dot Tn, which is equal to 1 by 3 n cube minus n. Now then we can write it as summation n square, okay, and minus summation Tn, okay, is equal to 1 by 3 n cube minus n, okay. So summation Tn will be, now we will put the formula of summation n square. I have discussed in previous class all the formulas, summation n square and summation n cube. So summation n square is equal to n plus 1, 2n plus 1 upon 6 minus 1 by 3, and this will become n minus 1 n plus 1, okay. So summation Tn will be n plus 1 upon 3, आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा. What left out here, 2n plus 1 upon 2 minus n minus 1. So after solving this, summation Tn will be n plus 1 upon 3 and 2n cancel out and this will become 3 upon 2. 3 से 3 cancel out. So summation Tn will be n plus 1 upon 2. बट ये सम ऑफ Tn आया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल Tn फाइंड आउट करना है. सो वी नो द फार्मूला, इफ Sn is given, so Tn will be Sn minus 1. Suppose you have a AP sequence 1, 2, 3 and dot dot.
S1 is what? Sum of first term, which is 1. S2 is what? S2 is sum of first two terms, मतलब 1 and 2 का सम, वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अगर आपको T2 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? S2 माइनस S1 करोगे, विच इज 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो Sn माइनस Sn माइनस 1 करने से हमें क्या मिलता है? Tn मिलता है। तो Sn की वैल्यू क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, ये क्या है आपका? Tn है। सो Tn विल बी n बाई 2 कॉमन, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो Tn विल बी n। So check the option D is correct. Now you can solve it by short trick. If we put n is equal to 1, so we will get only this term, and this term will become 1 का square 1 minus T1, and RHS will be 0, 1 cube 1 minus 1 0. So here we will get T1 is equal to 1, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? हमारी 1 होनी चाहिए। अब हमारे पास ये सभी Tn की टर्म गिवन है। अब यहाँ पे हम n की जगह 1 रखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें क्या गिवन कर रहा है। फर्स्ट वाला क्या गिवन करेगा 1 रखने पे? 1/2। सेकंड क्या गिवन करेगा? 0। थर्ड हमें 2 गिवन करेगा। ओनली फोर्थ ऑप्शन विल गिव अस 1, so fourth will be the correct option. You can also solve it by using this method. Okay, now come to the question number 73. We have to find the harmonic mean of the roots of this equation. Okay, लेट कर लेते हैं इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा इसका? 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 2 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है? C अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 2, सॉरी। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का b अपॉन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। तो दिस कैंसिल आउट, 2 इंटू यहाँ से 2 मिल जाएगा हमें कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? 4 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा? 4 प्लस रूट 5, और ये आपस में कैंसिल आउट, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। सो हार्मोनिक मीन will become 4. So option B is correct. Now come to the question number 74. In question number 74, what we have given now, we will solve it by using two methods. First method is given by this. Suppose this is S. S is equal to what? 1 plus 4 plus 8 plus dot 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 Tn. Okay, now S can be written as, if we shift one place, so what will we get? यहाँ 13 है तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? Tn माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का Tn हो जाएगा। ओके, सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, so what we will get? 0 is equal to 1 plus 3 plus 4 plus 5 dot dot minus Tn minus 1 plus Tn and minus Tn. ओके, तो Tn को इधर भेज देते हैं, तो Tn will be 1 प्लस, अब यहाँ से ये देखो कितनी टर्म है हमारे पास? n माइनस 1, और ये कैसे बना रहा है? ये एक AP सीक्वेंस है, तो AP सीक्वेंस का सम क्या हो जाएगा? n माइनस 1 अपॉन 2, 2a मीन 6 प्लस n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, तो Tn विल बिकम
2 plus n minus 1 and n plus 4 whole upon 2. Okay, so Tn will become 2 plus n square plus 4n minus n and minus 4 whole upon 2. Okay, so Tn will become n square plus 3n and minus 2 upon 2. But we have to find out summation, it means sum of Tn. So sum of Tn will be sum of 1/2 तो बाहर ले लेंगे, पूरे में कॉमन है, सम ऑफ n स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू सम ऑफ n minus 2 sum of 1. Okay, write it. So 1/2, put the value of n square, summation n square n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus 3n n plus 1 upon 2 minus 2n. ओके, n कॉमन आ जाएगा, तो n/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, तो प्लस का 3n एंड प्लस का 1 अपॉन में 6, अगर हम एलसीएम ले लें यहीं पे डायरेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 9n प्लस 9 एंड माइनस 12n. ओके, तो ये हो जाएगा n/2, सॉरी n तो कॉमन ले लिया है ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 12 बचेगा. ओके, तो ये 12 नहीं, 2n स्क्वायर 9 3 12n माइनस 9 1 10 माइनस 2 होल अपॉन 6. 2 यहाँ से एलसीएम आ जाए, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n/6 n स्क्वायर plus 6n minus 1. So this will be our answer. So option A is correct. Okay, so you can also solve this question by putting the value of n. Now put the value of n is equal to 1. What you will get here, n is equal to 1 पुट करोगे तो 1 ही मिलेगा. अब देखो किस ऑप्शन से 1 मिल रहा है हमें, ये तो वैल्यू 1 हो गई सभी की बाहर. यहाँ पे देखो 1 प्लस 6 माइनस 1, तो ये 6/6 यहाँ से 1 मिलेगा. यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से आपको मिल रहा है 8/6 विच इज़ नॉट ट्रू. यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 6/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 8/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 75. This is very nice question. If you know the greatest integer function, you can solve it easily. What is greatest integer function? F of x is equal to, this is the notation of greatest integer function. ये फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसको कोई भी वैल्यू देते हो, जैसे अगर कोई इंटीजर वैल्यू देते हो, सपोज 1, तो आपको ये सेम आउटपुट देगा 1. अगर आप 2 देते हो तो आपको क्या आउटपुट देगा, 2. बट इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ 0.5, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 0.5 किन दो इंटीजर के बीच में है. तो ये 0.5 किन दो इंटीजर के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है. ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो जो लीस्ट इंटीजर है ना जिनके बीच में ये है, वो हो जाएगा जैसे 0. ओके, सपोज 1.9. अब 1.9 किन दो इंटीजर के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है. तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ओके, हमें लीस्ट वाला चुनना है. आई होप ये मेथड क्लियर होगा. क्लियर है. अब देखिए
सबसे पहले क्या है 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस फिर 1/2 प्लस 1/100, ये भी 0 और 1 के बीच ही में रहेगा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम कब तक 0 मिलेगा, जब तक यहाँ क्या रहेगा 49/100 रहेगा। यहाँ तक ये सारी टर्म क्या मिलती जाएंगी, हमें 0 के इक्वल मिलती जाएंगी। ओके, और जैसे ही ये 50/100 बनेगा तो 50/100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और हाफ प्लस हाफ मिल करके क्या बन जाएगा 1। उसके बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी 100/100 से पहले, वो क्या आ जाएंगी हमारी सारी की सारी 1 के इक्वल आएंगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो 50 से लेकर के 99/100, और जिसमें 1/2 सभी में ऐड हो रहा है, उन सभी की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। अब ये टोटल कितने हो गए, 50 to 99 के बीच में नंबर निकाल लो टोटल कितने हैं। तो TN/AP सीक्वेंस बना रहा है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस n-1, d की वैल्यू 1 हो गई, तो 99 माइनस 50 कितना हो गया 49 इज इक्वल टू दिस। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, कितने टर्म में टोटल 50, तो कितने टाइम्स 1 लिखा होगा यहाँ पे 50 टाइम्स, तो 50 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। Thank you so much for watching the video. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much.